معزز ناظرین، میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکوری ورلڈ اردو۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت آدم، ان کی پیدائش، حابیل قابیل، ان کی اولاد کے بارے میں ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ ان کی زندگی کے دلچسپ و عجیب واقعات، تاریخ میں ان کا ذکر کیسے کیا گیا، قرآن کریم کی روح سے ان کے حالات زندگی کا جائزہ اور جدید دنیا کی تحقیقات ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ناظرین، ہم نے یہ تمام واقعات دنیا کی مستند تواریخ کی کتب سے اخذ کیے ہیں، اور یہ واقعات صرف مسلمانوں کی کتب سے نہیں بلکہ تمام عیسائی اور یہودی کتب سے بھی نقل کیے گئے ہیں۔ ہماری ویڈیو میں دکھائے گئے تمام واقعات فرضی ہیں، ان کا اصل واقعات سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ آپ کی دلچسپی کا سامان رہے۔ ہماری ویڈیو میں بہت سی قرآن آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اگر کسی آیات کے ترجمے میں نادانستہ غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ سے اس کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور آخر میں ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز اور اس ویڈیو کی نیکسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ جس وقت حضرت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھی، فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ حضرت اما حوا دنیا کی نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ شجرۃ ممنوعہ، وہ درخت کون سا تھا؟ شجرۃ الممنوعہ، جس کو ممنوعہ درخت کہا گیا تھا کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ ایک قول ہے کہ انگور کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال موجود ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کے حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں۔ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے اس کی ضرورت نہیں کہ ہمیں اس کے زیادہ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے جنت کی تمام کھانے والی چیزیں ان پر حلال کی اور آپ ان کو کھانے میں آزاد تھے، صرف اور صرف ایک درخت کے قریب جانے اور اس سے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ طبری نے، ابن عباس نے، ابو مالک، ابو عطیہ قتادہ اور دوسروں سے بہت سی روایات نقل کی ہیں کہ یہ درخت گندم کا تھا۔ بعض دوسری روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ درخت انگور کی بیل یا انجیر کا درخت تھا۔ توسی نے اپنی کتاب میں گندم، انجیر اور انگور والی روایات کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ درخت کافور کا درخت تھا۔ ادھر ابلیس کو ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اما حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے اما حوا کو بہکانا شروع کر دیا، وسوسہ ڈالنے لگا کہ یہ درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح، ورنہ تم بھی مر جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا تھا، سانپ کی صورت میں ان سے بات کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا۔ اس وقت تمہاری نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم اسے کھا کر برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب آپ مضبوط ہو چکے ہیں، اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اما حوا اس کی باتوں میں آ گئیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا، اس درخت کو کھانا پہلے ہمارے لیے درست نہ تھا لیکن اب درست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے اللہ تعالیٰ کی یہ نہی شرعی نہیں تھی بلکہ نہی شفتا تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ آپ اس وقت بھول گئے۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ درخت کھا کر فرشتہ بننے کی کیا ضرورت تھی؟ ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے۔ ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے جو جنتی تھے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا اس درخت کی تاثیر یہ ہے، جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا ہے وہ یہی بے لباسی کا وار تھا۔ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ الغرض وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اتحادی خطا تھی۔ نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اللہ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا کہ تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو۔ تم زمین پر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور قیامت تک
तुम एक दूसरे के खिलाफ रहोगे। इस दौरान जो मेरे भेजे हुए पैगंबरों की इताअत करेगा वो कामयाब होगा और जो शैतान के रास्ते पर चलेगा वो जहन्नम में जाएगा। तुम्हें एक वक्त तक दुनिया में रहना होगा, फायदे उठाने होंगे, तुम यहीं जिंदगी बसर करोगे और यहीं मरोगे और यहीं से दोबारा उठाए जाओगे। हजरत आदम की कहानी अंबिया की असमत का आपस में गहरा राब्ता है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक लाते हैं और लोगों के तमाम दीनी और दुनियावी अमूर से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा तमाम गुनाहों से पाक व तहर होना चाहिए। लेकिन हजरत आदम की खलकत की कहानी में ऐसी आयात भी मिलती हैं जिनको अंबिया की इसमत के लिहाज से परखने की जरूरत है। मिन जुमला ये आयात, शैतान ने हजरत आदम व हजरत हवा को जन्नत से लग़ज़िश में मुब्तला किया, उनको धोखा दिया। उन्होंने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। शैतान ने आपको वसवसा किया। हजरत आदम ने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की और गुमराह हुआ। एक सादा और मुख्तसर जवाब जो मुफस्सिरीन ने इन आयात और अंबिया की इसमत में लिखा है उनके लिहाज से जो दिया गया है जवाब वो ये है कि हजरत आदम इस लग़ज़िश व खता को अंजाम देते वक्त दार तकलीफ में नहीं थे, या आप इस वक्त मकाम नबूवत पर फैज नहीं हुए थे, या जो कुछ हजरत आदम से सरजद हुआ वो तुर के ऊला था ना कि गुनाह। कहा जाता है हजरत आदम का कद बहुत बड़ा था, शायद जन्नत के 60 गज के बराबर। जब आसमान से उतारा जा रहा था तो दराजी की वजह से फजा में लहरा रहे थे। अल्लाह ताला ने दराज कद को मुख्तसर कर दिया और दुनिया के 60 गज के बराबर हो गए और सीधे उतरने लगे। दर मंशूर में ये भी लिखा गया है कि हजरत आदम व हवा को अलग अलग मकाम पर उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कोह हिंदू में और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को कोह जिरा में। दोनों अपनी जगह पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अपनी गलती पर तौबा करना चाहिए लेकिन इल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। अल्लाह ने उन्हें ये कलमात सिखाए, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने हमें माफ ना फरमाया और हम पर रहम नहीं किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। जब उन्होंने ये कलमात कहे तो अल्लाह ताला को उन पर तरस आ गया और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और वो इरफात के मैदान में एक दूसरे को तलाश करने में कामयाब हो गए। यहीं से दुनिया में इंसानियत के दौर का आगाज हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं लेकिन तशरीई नबी नहीं हैं, बल्कि इन नबियों में से हैं जो दुनिया की शुरुआत में तालीम इंसान के लिए भेजे गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया था। सब एक अल्लाह की इबादत करते, खेती बाड़ी करते और जानवरों को भी पालते थे। इस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने 20 बार विलादत की तकलीफ उठाई। हर बार जड़वा बच्चे पैदा होते, एक लड़का एक लड़की, जो एक साथ पैदा होते थे वो सगे बहन भाइयों की तरह होते थे। उनकी शादी नहीं हो सकती थी। जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। इंसानी आबादी के लिए उस वक्त अल्लाह ताला ने यही हुक्म बतौर शरीयत नाज़िल फरमाया था। इस तरह बीबी हवा ने कुल 40 बच्चों को जन्म दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे काबिल और हाबिल भी हुए। काबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी, जबकि हाबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो खूबसूरत नहीं थी। काबिल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जड़वा बहन से शादी करेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी शरीयत के मुताबिक मना फरमाया क्योंकि अल्लाह ने उसकी इजाजत नहीं दी थी। काबिल अपने बर्ताव में भी सख्त था। वो खेती बाड़ी करता था। आज भी खेती बाड़ी करने वालों के मिजाज सख्त होते हैं, जबकि हाबिल बहुत नरम मिजाज थे और वो बकरियां चराते थे। बकरी आजिज जानवर है और हमारे हजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियों को चराया था। बकरियों के साथ रहने से इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा होती है। इसी वजह से अक्सर अंबिया ने बकरियां चराई हैं। काबिल अपनी बात पर अड़ गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इशारा खुदाबंदी से फैसला फरमाया, तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह के सामने पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेंगे वो अपने मौक़िफ़ में सही होगा। इस जमाने में जब अल्लाह के लिए कुर्बानी की जाती तो आसमान से एक आग आती थी, जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती। हाबिल नेक और मुखलिस इंसान थे। उन्होंने अपने गले के सबसे अच्छे जानवर को कुर्बानी के लिए पेश किया, जबकि काबिल ने सबसे घटिया फल नजराने में दिए। आग आई और हाबिल की कुर्बानी को खा लिया। हाबिल की जीत हुई और काबिल को शिकस्त हो गई। फैसला हो गया कि हाबिल मुत्तकी और नेक इंसान है, वो अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त है। काबिल को हसद होने लगा।
बजाय नेकी और तकवा का रास्ता इख्तियार करने के वो शैतान के जाल में फंसता चला गया। उसे हाबिल पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने ठान ली कि वो हाबिल को कत्ल करके रहेगा। एक दिन मौका पाकर उसने हाबिल से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं मजलूम बनना पसंद करूंगा, जालिम नहीं बनूंगा। काबिल ने हाबिल के सर पर बड़ा सा पत्थर मारा जो उनकी मौत का सबब बन गया। ये धरती पर, अर्ज पर, जमीन पर इंसान का पहला कत्ल था और पहली मौत भी थी। काबिल ने कत्ल का जुर्म तो कर लिया, लेकिन उसको अब समझ नहीं आ रही थी कि हाबिल की लाश का क्या करे, क्योंकि अभी तक किसी इंसान की मौत नहीं हुई थी। वो इसी शशोपान में था कि अल्लाह ताला ने एक कौवे के जरिए उसे मुर्दा दफनाने का तरीका समझा दिया। एक कौवा अपने साथी को जमीन में गड़ा गोद कर दफना रहा था। काबिल बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने दिल ही दिल में सोचा कि मैं तो कौवे से भी गया गुजरा हूँ। कौवा तदफीन का तरीका जानता है और मैं नहीं जानता। काबिल ने गड़ा खोदा और हाबिल को दफना दिया। उसके बाद काबिल जिससे शादी करना चाहता था उसे लेकर हजरत आदम से बहुत दूर निकल गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की असल उम्र 1000 बरस थी। अपनी उम्र के 40 साल आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देने का कह दिया था, इसलिए आपका इंतकाल 960 बरस की उम्र में होने वाला था। जब हजरत आदम 960 साल के हो गए तो बच्चों से कहा, मुझे जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश हो रही है। सारे बच्चे उधर उधर फैल गए फल ढूंढने के लिए। रास्ते में उनको मौत का फरिश्ता मिला जो इंसानी शक्ल में था। उन्होंने कहा, वापस जाओ, हजरत आदम की मौत का वक्त करीब है। फरिश्तों ने हजरत आदम की रूह कब्ज कर ली, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और दफन कर दिया। आपकी मौत के बाद हजरत शैस अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत व खिलाफत का ताज सजाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों के बारे में बहुत से तारीखी हवादिस और वाक़यात के मानद कोई कतई नजरिया मौजूद नहीं, क्योंकि काबिल एतबार तारीखी किताबों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों के नाम और तादाद के बारे में इख्तिलाफ पाए जाते हैं। ये शायद उनके और तारीख के दर्द तहरीर में आने के दरमियान का जमाना बहुत ज्यादा लंबा था, या उन सब के नाम अहम न होने की वजह से था। काजी नासिरुद्दीन अपनी किताब निज़ाम तारीख में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा के फर्जंदों की तादाद के बारे में लिखते हैं, हवा जब भी हमला होती थी एक बेटे और एक बेटी के साथ जन्म देती थी और हर बतन मादा को दूसरे बतन के नर के साथ ब्याह दिया जाता था, यानी एक बतन की मादा को दूसरे बतन के नर से शादी कर दी जाती थी। वो इस सिलसिला में आगे लिखते हैं, अम्मा हवा ने 120 बतन से फर्जंदों को जन्म दिया और काबिल चौथे बतन का बेटा था। हाबिल के हलाक होने के 5 साल बाद एक बतन से आदम का एक बेटा पैदा हुआ और उसके हमरा बेटी नहीं थी। उसका नाम शैस रखा गया था और फरमाया, वो हाबिल के बदले में एक और मुबारक बेटा है और वो पैगंबर होगा। इस नजरिया के मुताबिक हजरत आदम के 239 फर्जंद या औलादें थीं। तिबरी ने अपनी तारीख में इस नजरिया की हस्ब झैल 3 शरहें लिखी हैं। नंबर 1, बेटे और बेटियों पर मुश्तमिल 120 औलादें। नंबर 2, 40 बेटे और बेटियां। नंबर 3, 25 बेटे और 4 बेटियां। तिबरी और इब्नुल असीर की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत आदम को काबा बनाने का हुक्म दिया और हजरत जिब्राइल ने उन्हें मनासिक अदा करने के तरीके बताए। हजरत आदम ने 960 बरस की उम्र पाई और बकोल याकूब जबल अबू कैस के दामन में मुगारतुल कनूज खजानों के गार में मदफन हुए। बाद मौरखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक श्रीलंका में उतरने के मकाम पर वाक़ है। बाज मौरखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक इराक में वादी उस सलाम में हजरत अली और हजरत नूह की कब्र के साथ मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ बने बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।